जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरि ऊंची दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હરિ ऊंची પ્યારાજી, हरे हो जी प्यारा जी, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. सहारा विना बीज उगતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, जगत कुसंगे ज दुख, કેવલ સત્સંગે જ સુખ. केवल सत्संगे ज सुख. દાદાજીનો હસતો મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, શમને દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે ઊંચી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખો લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવને ભાવટ વાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમનાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આત્મ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હરે ऊंची दादाजी, હારે હો જી દાદાજી, हरे ऊंची प्याराजी, હારે હો જી પ્યારાજી. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय श्री महेशान जी, अनम्यूट करजो। ओके, क्विकली नौ कलमों बोलो, ऑल्टरनेट श्रेया नंबर 1, चिनाई नंबर 2। હા જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવે કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુભા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ
પ્રમાણ ન ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેખારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए कि कथा के प्रति न अनुदाय એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે તેમને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્ત બળું ન કરાવી શક્તિ આપો. સમરસે ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલાનું કોઈ ન પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. Jai Satya, very good. Vaishanji, Srimati બોલાઈએ please. નમો વિતરાગાય. નમો નમો વિતરાગાય. વિતરા, નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો હરિહંતાણમ, અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વસાય, વસાયાણમ. નમો લોય સૌ શાહુણમ. નમો નમો લોય એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચનમસ્કારો સૌ અપાવપણાસણો. સૌ સૌપાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાનાં પઢવામ હવૈ મંગલ. પરમં વૈ મંગલં. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. Satchidanand. Shreya, daily prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और पसंद से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दाता भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Vinay. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए
और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। छोटे जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमें आपके बच्चे, हमें आपके हमें बच्चे आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं दिल के सच्चे, हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी फिर हैं भी कच्चे। है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, थोड़ी बात करेंगे सिंसियरिटी में। लास्ट वीक का रिपोर्ट खुशी मोनिका ने दिया, आज कुछ नहीं है। श्रेया आज का लास्ट वीक का नहीं आज भेजा, और साक्षीबा ने लास्ट वीक का भेजा, आज नहीं भेजा है। राइट, दैट सिंसियरिटी आपकी सबकी। राइट, तो क्या लास्ट वीक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज क्या हुआ, तो जरा बताइए। और करिश्मा, आप किस में सिंसियर रही है एक वीक के लिए? आपने हमको मैसेज तो नहीं भेजा था इसमें रहने का है आपने एक ही चीज बोला था, सिंसियरिटी, खाना सिंसियर, स्कूल जाना सिंसियर, उठना नॉट सिंसियर, दूसरा क्या बोलो? बात एवरीडे बात सिंसियर। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी, क्या सिंसियर है? चलो मजेदार यार राह देखते हैं करिश्मा। ओके, आप नहीं बोलेंगे तो ठीक है, आपकी बड़ी सिस्टर बोलेगी। खुशी किसमें ओ सिंसियर थी, किसमें सिंसियर नहीं थी? जल्दी जल्दी बोलो, बाद में मोनिका बोलेगी। ब्रशिंग कारण में इनसिंसियर और बेकिंग और ब्रेकफास्ट में। आपको सुनाई देता है? हमको नहीं सुनाई देगा। महेशदार सुनाई देता है? नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया अच्छी तरह से। हाँ, क्या बोलना चाहती हो? पहले सिंसियरिटी में बोलो, किसमें सिंसियर है करिश्मा? करिश्मा ब्रेक और एक्सरसाइज में sincere थी। अब ब्रेक ब्रेकफास्ट होते खुशी, अब ब्रेक होते। मोनिका आप बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनो, बोलो। हाँ, वो खुशी कह रही है कि वो बेकिंग में और एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट में सिंसियर थी, ब्रशिंग में वो बिल्कुल इनसिंसियर थी, और ओके सच्चादन में भी। ओके, मोनिका आप करिश्मा, आप ब्रशिंग में इनसिंसियर था तो उसका नतीजा क्या आएगा? मोनिका बोलो, उसको क्या होगा? पीले दांत पीले हो जाएंगे और दांत सड़ने लग जाएंगे और उनमें यस, जर्म्स और कैविटी। और या दांत सड़ने लगेगा तो मालूम है इतना कितना वायरस, कितना बैक्टीरिया उसमें क्रिएट होता है। ओके, तो जरा ध्यान रखना। ओके खुशी, रिपोर्ट बोलना। एक मिनट, महेशदाद अभी इन लोग को सुबह उठ के स्कूल से जाने के बाद में घर में आके मम्मी की रिपोर्ट देता है, उसमें सब 11 आइटम्स है, उसमें सिंसियरिटी देखने का है। बोलो खुशी। 8 डेज का साथ में बोलो। नहीं नहीं, या एवरेज बोलो, व्हाट यू थिंक अच्छा था, व्हाट यू थिंक यू नीड इम्प्रूवमेंट।
बेकिंग में मुझे वीकेंड्स में इम्प्रूव करना है। वीकेंड्स में मैं लेट उठती हूँ और ब्रशिंग में रोज सही से करती हूँ, बट बीच में लंच में मैं गागल करना भूल जाती हूँ। उसे इम्प्रूव करना है। एक्सरसाइज में मेरी सूर्य नमस्कार कभी कभी रह जाती है, उसे सिंचर करना है। और ब्रेकफास्ट में मैं 6 टेस्ट लेने के बजाय 5 ही लेती हूँ, उसे भी इम्प्रूव करना है। साथ साथ मैं पापा के साथ वीकेंड में ही करती हूँ, उस वीक डेज में नहीं करती। और लीविंग स्कूल में टाइम से ही जाती हूँ। इस वीक में मुझे 2 बार लेट हो गया था स्कूल जाने को, उसे इम्प्रूव करना है। और स्कूल में मेरी सिंसियरिटी सभी में ये है, कभी कभी टीचर ने जो वर्क दिया वो कंप्लीट नहीं किया तो उसमें डी आ जाता है और मुझे वो वर्क कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स के साथ स्कूल में मुझे अभाव हो जाता है, उसे भी मुझे कम करके प्रतिक्रमण करना है। लंच में मैं गागल नहीं करती और प्रेयर कभी कभी भूल जाती हूँ, उसे इम्प्रूव करना है। एंड स्कूल से वापस आने के बाद मैं मम्मी से अच्छी से बात करती हूँ, रूडली नहीं करती। बस। मम्मी को सब बताती है? नहीं, वो कभी कभी बताती हूँ, उसे भी तो इम्प्रूव करना है। ये सब बताने का मम्मी को। और एग्जाम कैसा रहा? हाँ, एग्जाम इस बार अच्छा था। तमिल और मैथ्स में और इम्प्रूवमेंट करना मुझे। आ गया, रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी जस्ट 3 सब्जेक्ट गया है। तो अभी एग्जाम चल रही है? नहीं, खत्म। अभी हाफ ईयरली आने वाला है दिसंबर में। कब आएगा? मे बी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक। ऑफ दिसंबर? हाँ। ओके। मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे बेकिंग में इम्प्रूव करना है, वीक डेज में, वीकेंड्स में मुझे इम्प्रूव करना है। और साथ ही ब्रशिंग में मुझे सुबह उठ के 3 गिलास पानी पीना होता है, मैं उसमें सिंसियर नहीं हूँ, तो मुझे उसे इम्प्रूव करना है। और एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार और सुपर ब्रेन योगा दोनों रह जाती है, तो उसमें इम्प्रूव करना है। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत बार अभाव करती हूँ, जो भी मेरे खाने में प्लेट उसमें इम्प्रूव करना है। और साथ साथ पापा के साथ वीकेंड में करती नहीं करती, तो उसमें और स्कूल जाने से पहले पापा के साथ आशीर्वाद लेती हूँ। स्कूल में टीचर्स की करती हूँ और फ्रेंड्स इम्प्रूव करना है। और पीस नहीं आते, प्रेयर में हर रोज करती हूँ। और स्कूल आने के बाद मैं नहीं करती, तो कुछ मम्मी के साथ बात नहीं करती है? नहीं। नो, यू मस्ट ऑलवेज, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और करिश्मा, ये ब्रशिंग का इम्प्रूव करने का है। ओके ओके, इताक से बात। जय सच्चिदानंद। मुझे इस वीकेंड में बेकिंग में इम्प्रूव करना है क्योंकि मैं खुद नहीं उठ पाती हूँ। ब्रश और सच साधन में इम्प्रूव करना है क्योंकि मेरे सच साधन कभी रह जाते, नमस्कार विधि और एक्सरसाइज मेरे सूर्य नमस्कार रह जाते हैं। देखो, आपने तो ज्ञान लिया है, तो विधि नहीं करते तो नो एक्सक्यूजेज ना। नहीं, नमस्कार विधि रह जाती है। और नमस्कार में कितना टाइम लगता है? वो तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। कितना आशीर्वाद मिलते हैं उसमें, मालूम है आपको? हाँ, ये उसमें सब महात्मा आ जाता है, आपका पुत्र भी आ जाते हैं उसमें। श्रेया? हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको वीकेंड में वेकिंग अप में इम्प्रूवमेंट करना है। और दूसरा, स्कूल में कंसंट्रेशन का मुझको इम्प्रूवमेंट करना है। और खाने के वक्त बातें मैं ना करूँ, उसमें भी मुझको इम्प्रूवमेंट करना है। किसके साथ बात करते हैं आप? मम्मी के साथ, मतलब स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा खाती हूँ तो
सब मम्मी को बताती हूँ कि आज क्लास में क्या किया, तो तो उसमें खाने का कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। तो 10 मिनट राह नहीं देख सकते? और पहले बोलने का बाद में खाने का, खाने का बाद में बोल नहीं सकते? बस और मम्मी 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 को बोला, दादा बोलते हैं कि खाते जो टाइम बातें नहीं करने। ओके ओके। महेश दादा, आपने जब सुना ये सिंसियरिटी में हाँ हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तब दे इम्प्रूवमेंट हो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस, दे गेटिंग कॉन्शियस कि अभी सिंसियरिटी में फायदा होता है। ओके, आप थोड़ी बात आपने सुना, थोड़ा बातें हाँ करें। हाँ, ये इतना जो वर्ड्स है ना, इम्प्रूवमेंट करना है, तो अपनी खुद की गलती महसूस करते हैं, वो बताते हैं ये दिस इज माय मिस्टेक, सो आई हैव टू इम्प्रूव माय मिस्टेक, ड्रॉबैक, माय ड्रॉबैक, आई कैन इम्प्रूव माय मिस्टेक, ड्रॉबैक, जो भी है, तो मुझे इम्प्रूव करना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें सिंसियरिटी थोड़ी चाहिए। मैं बोलूँ कि सुबह उठना है, उसमें लेट उठता हूँ, तो मुझे इम्प्रूव करना है, तो बात अच्छी है कि दिस माय मिस्टेक, मैं लेट उठता हूँ, वो मिस्टेक को मुझे सुधारना है, इम्प्रूव करना है। फिर वो इम्प्रूव करना है तो उसके लिए एफर्ट तो होनी चाहिए ना। ये गलती आप डिक्लेयर करते और महसूस करते कि इम्प्रूव करना है, तो मिस्टेक को इम्प्रूव कब करेंगे, दैट्स अनदर पॉइंट। तो उसकी अभी राह नहीं देखने की। तो चलो, कल से इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, तो कब करेंगे? तो जितना जल्दी हो, वो अपनी सभी मिस्टेकें को इम्प्रूव करना है। नहीं तो आप हर हफ्ते के हर जो मीटिंग में, सत्संग में, ये बात रहेगी कि मुझे ये इम्प्रूव करना है, ये इम्प्रूव करना है, तो एप्लीकेशन करना, दैट इम्पोर्टेंस। तो जितना जल्दी ये इम्प्रूवमेंट का एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इम्प्रूव हो जाए, आज के आज जो भी मिस्टेकें होती है, जो भी एक्सरसाइज में जल्दी उठना, वो समरसी खुराक लेना, फिर वो बात खाने के टाइम बात करना नहीं करना, स्कूल लेट जाते, फिर मम्मी पापा के साथ जो भी डीलिंग होता है, जो जो आप ड्रॉबैक होती है, जो भी मिस्टेकें होती है, तो हमें तो अंदर से रखना कि अभी मेरी मिस्टेक एक भी होनी नहीं चाहिए, सब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दादा की बात ऐसी है, हमें दादा भगवान बताते थे, दादा भगवान खुद के लिए बताते थे, हमें तो एक भी मिस्टेक हमारी होती नहीं है, ऐसे हमें जागृत जागृत रहते। तो इनकी बात से हमें भी एक सीख मिलती है कि हमें भी एक मिस्टेक अभी इम्प्रूव करने की बाकी नहीं रहनी चाहिए। सभी इम्प्रूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि सब इम्प्रूवमेंट हो जावे, ऐसा हमारा एफर्ट, यानी कि प्रयत्न, सिंसियरिटी, तो ऐसी तो अंदर से तो नक्की होना चाहिए कि कोई गलती नहीं, पहले होनी चाहिए, गलती नहीं होनी, हो गई तो प्रतिक्रमण करके और फिर पक्का निश्चय करके हमें ये दोबारा ऐसा ऐसे गलती न हो, उसकी जागृति रखने की है। इम्प्रूवमेंट शब्द अच्छा है, वो एक सिमिलर टू प्रतिक्रमण बोलते हम, दिस इज माय मिस्टेक, आई हैव टू इम्प्रूव, दैट्स गुड। मगर ऐसे बोल के छूट नहीं जाना है, बोल के हम उसको ध्यान नहीं लेते, तो इम्प्रूव कब होगा? तो फिर से मैं मेरी सिंसियरिटी में मैं गलती ना करूँ, उसको बोलते इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं तो हर बार आपको यही क्वेश्चन आएगा, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, मगर कब करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। कल, आज से ही इम्प्रूव हो जाएगा, आज से मैं गलती नहीं करूँ। कोई भी जो 10-11 आइटम है आपकी, जो भी नियम है आपका, तो उसमें एक पण गलती मुझे नहीं होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ पक्का निश्चय कर लेते, तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव करना नहीं पड़ेगा।
उसकी सिंसियरिटी ऐसी होगी कि नहीं, ये करना ही है, खाना ऐसा ही खाना है, समरसी खाना है, खाने के टाइम बात ही नहीं करनी, फुल जल्दी उठना है, फुल टाइम सर जाना है, एक्सरसाइज करना ही है, विधि करना ही है। तो ऐसा ये रह गया, ये रह गया, ये वो मालूम पड़ता है कि इम्प्रूव करना, दैट गुड। मगर ये इम्प्रूव एक बार मालूम पड़ा कि गलती हुई, इम्प्रूव करना है तो फिर से इम्प्रूव करना है, बोलना नहीं पड़ेगा, अपना इम्प्रूव हो ही जाएगा, ऐसा पक्का निश्चय करना है। ये इसलिए दादा भगवान ने हमें बताते थे, एक भी गलती ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए जो बाहर दिखे। ये जो भी लेट उठते हैं बाहर दिखता है, विधि नहीं होती है बाहर दिखती है, टाइम सर जो भी कुछ भी एक्सरसाइज है, टाइम सर जो भी खाना है, खाने में उपयोग रखना है, यानी कि सभी में पक्का निश्चय हम रखते, तो दादा भगवान बोलते एक भी गलती हमेरी कोई निकाल नहीं सकते। सूढ़ गलती को आंख से दिखे ऐसी गलती तो होनी नहीं चाहिए। ऐसे हमें आप तो पुत्रों को दादा को सिखाते थे। अपने ऐसे व्यवहार में जो भी नियम है आप तो पुत्रों का, जो भी के महात्माओं का, तो अपने जैसे हम किसी के साथ गुस्सा आ जाता है, मुंह चढ़ जाता है, इनके कुछ गलती खाने में के जो भी व्यवहार में ऐसा गलती एक मालूम पड़ा, दैट इज आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे अभी फिर से गलती न हो, ऐसा पक्का निश्चय किया, उसको इम्प्रूव करना बोलते हैं। फक्त एक पक्का निश्चय कर लेने का, ये गलती फिर से न हो, और ऐसा मेरा इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिकल होना चाहिए कि फिर से गलती ना हो, ऐसा अंदर जागृति रहनी चाहिए, उसको इम्प्रूव बोलते हैं। इम्प्रूव करना है वो अच्छी बात है, सुधारना है, मेरी गलती को निपटना है, और मुझे ये गलती को फिर रिपीट न हो, उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। पक्का निश्चय कर, बार बार ऐसा न हो कि गलती हो और इम्प्रूव करना है, गलती हो। तो ये गलती कैसे क्यों हो जाती है और क्यों इम्प्रूव करना है, वो एनालिसिस करना है। वो कौन कौन सी वजह से हम लेट उठते हैं, कौन सी वजह से पढ़ाई कम करते हैं, कौन सी वजह से ये एक्सरसाइज नहीं होती है, खाने में जो भी बातचीत बीच में करते हैं, लेट स्कूल जाते हैं कि होमवर्क में जरा, तो और मेरी इम्पोर्टेंस जो पढ़ाई का है और हेल्थ का है, लेट उठने से क्या नुकसान है, विधि नहीं करने से क्या नुकसान है, तो दादा भगवान बोलते ये सब नुकसान यानी कि लॉस, क्या लॉस है आप समझ पाएंगे, तो अपने आप लॉस को अवॉइड कर सकते, कम कर सकते, और लॉस नहीं होने देंगे। तो विधि करने से क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, एक्सरसाइज करने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, लॉस एंड प्रॉफिट आप खुद को समझाना है, खुद का मन को, ये करने से लॉस है, ये करने से फायदा। इस तरह से दादा भगवान बोलते थे। खाली आप ये 10 11 पॉइंट है आपका जो अभी रिसेंटली, उसमें ये इम्प्रूव करने में और पक्का निश्चय करने में क्या फायदा और क्या नुकसान है, वो जरा कंपेयर कर लेने का। दिस इज बिगेस्ट लॉस, दिस इज बिगेस्ट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट होगा और उसकी वैल्यू प्रॉफिट का समझेंगे, लॉस का कितना नुकसान है उसकी वैल्यू समझेंगे, ये तो बहुत भारी नुकसान है। तो हम फिर अपने आप को इम्प्रूवमेंट की काळजी लेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लॉस दिखेगा वहां अपने ब्रेक लग जाएगी। बराबर है। ठीक है। तो अभी देखो, आप लोगों ने दो चार चीज बोला है इम्प्रूवमेंट करने का, तो कल से ओनली विल concentrate on the 4 or 5 items
इन जब महेश दादा ने बताया ना प्रॉफिट और लॉस बताने का, ओके मालूम पड़ गया। ओके हिताक्षी बा, हाँ आप तो केलनपुर जाके आए तो एक दो दादा का कुछ दादा के बारे में तो बहुत बहुत बात हुई है। कुछ याद आता है कि दादा के बारे में कि आपके लिए अप्रोप्रिएट है और आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ याद है? हाँ, वहाँ पर बहुत सारे पद गाए थे और फिर उसमें समझाया था। नहीं वो तो ठीक है, समय आया तो सब याद नहीं रहते है ना। वो जो दादा की बात करते हैं आप तो पुत्र, वो जो क्लिक हो जाता है कि हाँ दादा ऐसे करता था हमको ऐसे करना है, मेरा में ये वीकनेस है, दादा ये बताया तो ये करेंगे। वो नहीं हाँ कुछ वो याद नहीं आता है कुछ। हाँ वो कल पद में एक बार ये समझाया था कि दादा मौन करके रखते थे। ओके वेरी गुड। दूसरा कुछ? ऐसा पूरी नल में बताया था उसका। वो जरा मम्मी के साथ जरा बैठ के सोचना, कल बताना, ओके? जो कुछ आपको याद आए मम्मी को याद आए, ओके? हाँ ओके हमने अब 4 आइटम्स भेजा था, आई डोंट नो किसने ने भेजा। वो एक गुजराती में है, वो दादा का फ्लैग दिया था, तो आपको जरा पढ़ना, कल बताना हो क्या है, ओके? मोनिका और कुछ ही करिश्मा पापा को बोलना ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, ओके? दूसरा BMW, किसने देखा BMW का? ओके तो किताब सिवा ने जवाब दे दिया को तो, और BMW घर की नहीं है। मोनिका आप है? हाँ खुशी, हाँ तो ये आपको मालूम है क्या बात है BMW? हाँ हाँ, मैंने देखा था वो वीडियो। क्या होता है BMW? बर्तन, वीडियो देखा था, मैं भूल गई। बर्तन, कोई हेल्प करो। बर्तन मांजने वाली। बर्तन मांजने वाले। हाँ और BMW कार आता है, सबको मालूम है? हाँ हाँ BMW बहुत एक्सपेंसिव कार आता है। तो महेश दादा एक छोटी हाँ बच्ची बर्तन बाजती थी और बोलता है हम BMW ऑफ माई हाउस। हाँ, सही बात। ओके तो आप श्रेया, आप BMW है सैटरडेज को। क्या? सैटरडे ओनली, ओके। हम तो है ही। ओके तो दूसरा कुछ दो तीन भाषा तो जरा देख लेना, ओके? तो कल बातें करेगा दादाजी ने क्या फ्लैग में मैसेज दिया था, ओके? दीपक दादा, you want to say something? Couple of minutes. या जय सच्चिदानंद। जय। बोलो जय सच्चिदानंद बच्चे लोग। सच्चिदानंद। गलतियां अगर हो जाती तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सीख रहे हैं। और ये सीखने का जो सारा रास्ता है वो वो एक दिन में, एक महीने में ऐसा खत्म नहीं होता है। वो तो सारा जीवन एक हमारी यात्रा है, और वो यात्रा को सभी तरह से पक्की बनाने के लिए ये दादा भगवान से जो हमने सीखा और बाकी का ये सब जो कुछ भी है,
उसको हम पक्का कर लेना चाहते हैं कि वो हमारा जीवन बन जाए। इसीलिए तो बोलते ना, ये दादा भगवान जी से उत्कृष्ट कैसे मानवी, उस व्यक्तित्व के मानवी बनना चाहते हैं। तो व्यक्तित्व के मानवी रातों रात बनते नहीं है, धीमे 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 करके होता है। लेकिन आपको तो होना है ना कि पक्का है, वो पक्का है सबका। छोटी तो बोलती भी नहीं है। श्रेया को नहीं बनने का है। वो हितक्षी भी नहीं बोलती है, तो अभी भी बोलती नहीं है। हाँ। हाँ, ऐसा क्यों है? होना है सबको, बात सही है, वरना पाएंगे नहीं। तो अभी उसके लिए जो बेसिक जो है ना, जो हमें करना है, उसमें भूल होनी नहीं चाहिए। एक तो हमारा निश्चय निश्चय पक्का करने के लिए सुपर ब्रेन योगा। चलो आज की बात लेते हैं। सुपर ब्रेन योगा किस दिन किया? आज छोटी ने किया, बोलो। हिताक्षी बारे नहीं किया, मोनिका ने नहीं किया। मोनिका दीदी हो गई है फिर भी नहीं करती है अभी। तो ये बहुत डेंजर है, बहुत ही डेंजर है। ओके ओके बेटे, फाइन, वेरी गुड। तो अभी ये इसमें से हमें पक्का करना है कि ये हमारा निश्चय को पक्का भी करता है और निश्चय को रियलाइज यानी रूपक में लाता है। क्या उसका मतलब रूपक में लाना यानी? यानी उसका उसका रिजल्ट आता है हमें। क्या बोला हमने जो खुशी, क्या बोला आपने? रूपक में लाना यानी क्या होता है? उसे हमारे रिलेटिव एक्शन में लाना। करेक्ट, टू ब्रिंग इट इन एक्शन, इट टू टू कम इन द एक्शन। करेक्ट, बराबर है। तो ये एक्शन में आने के लिए पूरी लाइफ निकल जाती है। दादा ने कहा हमारे तो कितने सारे लाइफ्स गए इसके पीछे, तब हम बने हैं। लेकिन हमें दादा भगवान मिल गए हैं, इसीलिए हमारे लिए विद इन वन लाइफ हमें ऐसा करना है। ख्याल में आया? करना कि नहीं? करना। हाँ। हाँ। हाँ, तो इसके लिए हम तैयार रहना है। और ये जो कुछ बेसिक चीज है वो सब रखेंगे ना, तो फिर आपको पीछे हटना नहीं पड़ेगा। वो फिर जैसे बोलते हैं ना, उसको जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो लगेगा, पर उसका जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट तो समझते हैं ना, उसका परिणाम वो खाने की और खिलाने की मजा ही कुछ और होगी। तो ये निश्चय हमें पक्का रखना है। और ये सब जो सिंसियरिटी की बात है, वो एक लेवल या एक पहलू की नहीं है। मैन ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी बोलते हैं। तो उसमें कोई कोई भी एक चीज कच्ची होगी कि नहीं? कुछ तो कच्चा होगा कि नहीं? हाँ, हाँ। नहीं होता है बेटे। उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी यानी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। प्रिया दुखी हो गई, हाँ, क्यों उदास हो गई? नहीं, वो ये तक भाभी उदास हो गई, हाँ। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। गलत क्या नहीं? गलतियां तो होनी नहीं चाहिए, करनी नहीं है, हो जाती है। लेकिन वो हो जाती है करते 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 इतना पक्का हो जाएगा। और इसीलिए हमें ये करना है। तो ये निश्चय को मजबूत करना है। करना है कि नहीं? करना। छोटी नहीं बोली, देखो। छोटी हाँ, को छोटी को तो मस्ती करने का है। ठीक है, लेकिन वो दीदियों को देख के सीख जाएगी। इसलिए दीदियों को पहले देखो, मोनिका दीदी ने आज थोड़ी गड़बड़ कर दी, अब नहीं करेगी। ख्याल में आया? हाँ हाँ। और जितना जितनी हमें सफलता मिलती है ना, उतना हमारा आनंद बढ़ता है।
और जितना हम निष्फल जाते हैं, गलतियां करते रहते, ऐसा हो जाता है, हमारी अंदर की हैप्पीनेस चली जाती है। तो हैप्पी तो होना है ना। आप लोग ऐसे मरे हुए जैसे क्यों हैं? हैप्पी एंड चीयरफुल रहना बच्चे तो कैसे होते हैं? हाँ, समझ गए ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया और विताक्षी भाई, मम्मी ने ना बोला है नहीं बोलने का? नहीं। तो आके ना तो बोलने का और स्माइल तो देने का है ना विताक्षी भाई। वेरी सीरियस। अभी भी स्माइल नहीं देते, क्या करेगा? तो स्माइल का विताक्षी भाई, मतलब नहीं है यार, चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस समझते हैं आप? श्रेया शादी में स्माइल गए करो। तो कितना हैप्पी नहीं होते हैं? देखो श्रेया ने स्माइल किया, विताक्षी भाई स्माइल करो। किया तो सही। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। किया। ओके, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद।